गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और यहाँ पे आज हम सब कोई इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। Name the human activities responsible for the soil erosion. सॉइल इरोजन जो ह्यूमन एक्टिविटीज के सहायता से जो होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। Name the human activities responsible for the soil erosion. Responsible for the soil erosion. Name the human activities responsible for the soil erosion, ठीक है। The human activities are जो human activities which have made the topmost layer of the earth weak are, फिर लिख सकते हैं human activities which have made soil erosion are faulty farming system, faulty farming system.
farming system, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन caused by overgrazing, deforestation caused by overgrazing, conversion of land for agriculture purpose and constructions, conversion of land for agriculture, conversion of land for agricultural purposes and constructions, purposes and construction, and constructions and ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, सॉइल इरोज होता है। तो क्वेश्चन है नेम द ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पांसिबल फॉर द सॉइल इरोजन। ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बताना है जिसकी वजह से सॉइल इरोज होता है, ठीक है, सॉइल का इरोजन होता है, ठीक है। तो है ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच हैव मेड सॉइल इरोजन आर faulty farming system, deforestation caused by overgrazing, overgrazing मतलब ज़्यादा चरा लेने से, ठीक है, इसके जो एनिमल्स होते हैं उसके थ्रू, उसके द्वारा, इसके conversion of land for agriculture, है ना, purpose agriculture purpose and construction। तो ये एक्टिविटीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What do you understand by soil conservation? What do you understand why
soil conservation. Conservation. लिखेंगे सॉइल कंजर्वेशन soil conservation refers to all the necessary soil conservation refers to all the necessary methods, all the necessary methods to maintain the fertility of fertility of the soil to improve fertility of the soil to improve the productivity the productivity of agriculture. लिखेंगे लिखा हुआ है What do you understand by soil conservation? Soil conservation refers to all the necessary methods to maintain the fertility of the soil to improve the productivity of agriculture. इसमें और लिखना है The protection of the soil against erosion is called The protection of soil against erosion is called soil conservation. इतना लिखने का जरूरत नहीं था, इसको मिटा दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि शॉर्ट है ना, शॉर्ट है तो इतना नहीं लिख सकते हैं, बस एक ही लाइन लिखेंगे. Sorry to everybody.
एक ही लाइन में लिख देंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट द protection of soil, the protection of soil against erosion, against erosion is called soil conservation. Is called soil conservation. ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, what do you understand by soil conservation? The protection of soil against erosion is called soil conservation. ठीक है, उसको हम लोग soil conservation कहते हैं. How do construction of dams and embankment prevent flood? How do construction of dams and embankment and embankments prevent flood? How do construction of dams and embankments prevent flood? How do construction of dams and embankments prevent flood?
नदी के किनारे यानी कि बैंक्स, ठीक है, इसका लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स construction of dams and embankments and embankments along the banks along the banks of the river prevent the flood of the river, prevent the flood and soil erosion, flood and erosion. क्वेश्चन है हाउ टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड embankments prevent flood. तो आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड embankments along the banks of the river prevent the flood and soil erosion. कहने का मतलब ये है नदी के चारों तरफ जो डैम बना हुआ होता है, जो एम्बैंकमेंट बना हुआ होता है, वो फ्लड को रोकता है। अगर ये सब ना बना हुआ हो, मान लीजिए कि पूरे भारत में या फिर पूरी दुनिया में अगर नदी ना हो, तालाब ना हो, सब प्लेन हो, तो थोड़ी सी बारिश होगी और सब में पानी लग जाएगा, है ना। थोड़ी सी बारिश होगी और सब में पानी लग जाएगा। इसीलिए जो है डैम बनाया जाता है ना, ताकि ज़रूरत के हिसाब से उसको हम लोग खर्च करते हैं। देखते हैं कि इसकी ज़रूरत है डैम के वाटर की, उसको हम लोग खोलते हैं, फिर उसका यूज़ करके फिर उसको बंद कर देते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो ज़्यादा मतलब फ्लड ना हो, ठीक है, बाढ़ ना आवे, इसके लिए डैम्स के बैंक पे जो है किनारे पे वो कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, ठीक है, ताकि पानी बाहर ना आवे, है ना। और नदी तालाब अगर ना बना हुआ हो, पूरा एकदम प्लेन हो, ठीक है, तो थोड़ी सी बारिश होगी, यानी एक दिन अगर बारिश हो गई, जैसे हम लोग के यहाँ बरसात में बारिश होती है, तो वो पूरा का पूरा जो है भर जाएगा। जैसे कि बगल वाला एक तालाब है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, मतलब डूबने लायक है, डूब के आदमी मर जाएगा। अगर ये तालाब ना होता तो ये पानी जो है इसी स्कूल के आसपास में कम से कम हमारे पाँव तक लगा हुआ होता, है ना। यहाँ पर देख लीजिए गंगा नदी, अगर गंगा नदी नहीं होती तो उसमें कितना पानी रहता है, जानते हैं आप लोग। अगर वो गंगा नदी नहीं होती, उसकी जगह प्लेन होता, बिल्कुल सरफेस जो लैंड होता है जिसमें हम चलते हैं, रोड के बराबर प्लेन होता, तो आप समझ सकते हैं कि पानी जो है कितना लग सकता है। तो जो बनाया जाता है रिवर्स, डैम्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो भी बनाई जाती है उसको जो है सिर्फ और सिर्फ फ्लड से बचाने के लिए ही बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम।
नेक्स्ट डे हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हॉट्स है एक्टिविटीज़ है उन सबको आप लोग खुद से कंप्लीट कीजिएगा। ओके।